Hello students. So in this video we will continue our chapter number 7, which is basics of Java. So in a previous video we have done two practical, which is call cost and interest. So now in this video we are going to understand structure of Java, variables, and then commands, literals, right? So let's start. Okay, structure of Java. You all know what is the structure of Java, as we have seen in previous video, right? Structure of Java, हमने एक ये प्रैक्टिकल किया था इंटरेस्ट का, राइट? सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये स्ट्रक्चर है, राइट? कि पब्लिक क्लास, फिर क्लास का नाम, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड देन क्लोज, देन आफ्टर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या है? मेन मेथड है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज. So let's see our theory portion. So here first is public class and class name. As I show you, this is public class and interest is our class name. Then public static void main string args. Public static void main string args, that is the statement, this that is a method. Then after, within a curly bracket, block, we have a statement and the curly bracket. This is a ideal Java program structure, right? ये हम सबको पता है कि ये स्ट्रक्चर हमें प्रोग्राम जब डिजाइन करना होता है तो हम कैसे उसे एक स्ट्रक्चर में डिजाइन करते हैं, right? Now let's start examine simple Java statements. The basic thing we can do in Java within a method definition such as main, we will learn the following with the syntax. Now we are going to understand these all of things. First is data type, variables, literals, commands, Java statements and expressions, arithmetic operators, comparison, and logical operator. So first is data type. Now what is a data type? So data type determines the required memory size, type of value, range of value, type of operations that can be performed, right? Data type क्या है? So data type is a memory size, right? Which character is containing how much memory, how much storage, how much space, that is we get know all of this thing by data type. ये क्या है मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, right? Java supports 8 primitive data types. ये आपको एग्जाम्पल में पूछते हैं, एमसीक्यू में पूछते हैं. एग्जाम्पल में नहीं, एग्जाम में आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर. सो 8 primitives data type. So first is integer, byte, short, long, float, double, character, boolean, right? अब ये डेटा टाइप्स है क्या, हम इसे डीप में समझते हैं. तो the first 4 types hold integers, whole numbers such as 17. They are given you some numbers here. So first 4, that means byte, short, integer and long, is a holding integer. Next to hold real numbers such as 5.8. Okay, what is integer and what is real number first of all? So integer, that means we have a value, like here is 17 is our integer number, where real number, that means floating point, मतलब वो हमें कैसे असाइन की होगी, पॉइंट में 5.8, that is this is a real number. 129.35, so this is our real number. तो इंटीजर में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता, राइट? ये पॉइंट में वैल्यू नहीं होती. और real number, that is we have a value in a point. Okay, first we have a diagram here
which is shown as the type of value, range of value and default value and storage space as well. First is a byte. अब ये कैसे मेजर होता है, ये कौन मेजर करता है, तो कंप्यूटर। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैं ले रही हूँ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 24। अभी ये जहां पे हमने ए स्टोर करवाया है, तो पीसी में, कंप्यूटर में क्या होता है कि ये जो वैल्यू है कहीं पे तो रखनी होगी, राइट। ए को कहीं पे भी मुझे रखना होगा, तो वो जो स्पेस होती है, वो जो स्टोरेज स्पेस हम यूज करते हैं, उसका लोकेशन अलग होता है। उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसे लोकेशन कैसे देते हैं, ये लोकेशन ना आप और मैं नहीं देते, ये कौन देता है, कंप्यूटर देता है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ए की वैल्यू आई हैव, ए जो है उसकी वैल्यू स्टोर हो रही है ए की वैल्यू हो रही है 200, बी की हो रही है 204, सी की हो रही है 208। सो ये क्या है, इसके लोकेशंस है कि पीसी को हमें कैसे पता चलेगा कि ए क्या है, तो हम इसे, ये जो कैरेक्टर हमने दिया है ए, उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दैट इज अवर ए वैल्यू। बट पीसी उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा, दैट 200 इज ए, 204 इज बी, 208 इज सी। पीसी ए बी सी को नहीं याद रखना, वो आइडेंटिफाई कैसे करता है, 200। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ये मेमोरी लोकेट करना हमारा या आपका काम नहीं है, ये किसका काम है, कंप्यूटर मेमोरी का, कंप्यूटर का है, राइट। सो फर्स्ट इज अ बाइट, तो स्टोरेज स्पेस क्या है, 1 बाइट, और टाइप ऑफ वैल्यू इंटीजर, रेंज क्या होती है, -128 एंड 127। ये जो पूरा डायग्राम है आपको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस इस डायग्राम में से पूछते हैं। इसके बाद शॉर्ट दैट मीन्स 2 बाइट, शॉर्ट दैट मीन्स 2 बाइट। और टाइप ऑफ इंटीजर मैंने पहले बताया कि बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग, ये चार जो यहाँ पे दिए हैं वो कौन से टाइप्स हैं, कौन से डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप, राइट। और उसके बाद जो चार थे, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन, ये क्या है, रियल, कैरेक्टर एंड बुलियन डेटा टाइप, राइट। उसके बाद मतलब रियल डेटा टाइप्स है, राइट। इंटीजर, यहाँ पे मैं यहाँ कुछ ले रही हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, तो ये हमारा 10 जो है वो इंटीजर है, राइट। यहाँ पे मैं बी क्या है हमारा, मैंने 20.5 कर दिया, तो बी क्या हो गया हमारा, फ्लोट हो गया, राइट। वैसे ही अगर इसकी ये मेमोरी जो लोकेट होती है, वो एड्रेस कैसे होती है, ये जो मैंने वैल्यू दी है आपको दिखाने के लिए, वो कैसे मेजर होती है। यहाँ पे मैंने क्यों लिया 200, मैंने क्यों लिया 204, 208, ये सीरीज में क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इंटीजर 4 बाइट्स, राइट, 4 बाइट्स है, इंटीजर का स्टोरेज स्पेस क्या है, 1 इंटीजर इज इक्वल टू 4 बाइट्स। तो यहाँ पे 1 इंटीजर इज इक्वल टू 4 बाइट, तो मैंने 200, देन आफ्टर सेकेंड इंटीजर, तो लोकेशन क्या आएगा, इसमें 4 बाइट ऐड होके आएगा, इसलिए क्या आएगा 204। उसके बाद जो सीमी वैल्यू है उसका लोकेशन क्या होगा, 4 बाइट ऐड करके आएगा, दैट मीन्स 208, राइट। वैसे ही लॉन्ग इज इक्वल टू 8 बाइट्स, उसकी अपनी रेंज दी हुई है, रेंज ऑफ वैल्यूज, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद फ्लोट दैट मीन्स उसका रियल नंबर जो है, मतलब जहां पे पॉइंटिंग आता है। डबल इट्स ऑल्सो अ पॉइंटिंग वैल्यू बट इट इज 8 बाइट, राइट। वैसे ही कैरेक्टर इज इक्वल टू 2 बिट्स एंड कैरेक्टर्स, जिसमें क्या होता है 16 बिट यूनिकोड यूज होते हैं, राइट। ये क्या है मैं आपको यूनिकोड बाद में समझाती हूँ। फिर बुलियन इज इक्वल टू, बुलियन में क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स आएगा, राइट। इसमें कोई वैल्यूज नहीं आती, लेकिन इसमें क्या आता है, ट्रू और फॉल्स, राइट। दिस इज अ डेटा टाइप। तो सिंपली आपको ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे दिए हैं, उसकी रेंज, स्टोरेज स्पेस एंड टाइप्स ऑफ वैल्यू याद रखनी है, आपको ये पूछते हैं एग्जाम्पल में, राइट।
Now let's go on a variable. So what is a variable? If we want anything to be remembered by the computer during program execution, then it needs to be stored in a memory of a computer. जैसे मैंने बोला, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा कि a इज इक्वल टू 10, तो मेरे को ये 10 की जो वैल्यू है मुझे कहाँ पे स्टोर करवानी पड़ी, a में, राइट। सो ये a है, ये मेरा क्या है, वेरिएबल है। वैसे ही यहाँ पे b की 20 वैल्यू है, ये है वैल्यू, और ये b है, वो मेरा क्या है, वेरिएबल। ऐसे ही मुझे पीसी को कुछ याद रखवाना है कि ये वैल्यू आप याद रखो, इसका मुझे कैलकुलेशन बाद में करना है, तो वो वैल्यू को मुझे कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो वो जो स्टोर करवाने के लिए हम कैरेक्टर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, राइट। Programs manipulate the data that are stored in a memory. In a machine language, data can only be referred to by giving the numerical address of the location in a memory where it is stored. In high-level language such as Java, names are used instead of numeric address of memory location or refer to the data. जैसे मैंने बोला कि हमारी दो तरीके की लैंग्वेज होती है, मशीन एंड हाई लेवल, राइट। तो मशीन में क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मशीन लैंग्वेज है तो ए नहीं याद रखेगी, वो आइडेंटिफाई कैसे करेगी, तो 200, राइट, मतलब उसकी वैल्यू से, मतलब उसका जो लोकेशन है वैसे उसे आइडेंटिफाई करेगी। लेकिन जावा में क्या है कि हम अपने कैरेक्टर को यूज करके इजीली याद रख सकते हैं कि ये है, लाइक मुझे कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मुझे नेम देना है, लाइक मैंने दिया है स्टूडेंट की वैल्यू दी है, तो मैं स्टूडेंट दे सकती हूँ, राइट। तो मुझे याद रहेगा कि स्टूडेंट इज इक्वल टू 10। सो जावा में क्या होता है, कैरेक्टर से हम उसका नाम, मेमोरी लोकेशन याद रखते हैं, मेमोरी लोकेशन असाइन होता है। वेर मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक एड्रेस जो है उससे आइडेंटिफाई करता है। Now, a variable can take different data values at a different times during the execution of the program, but it always refers to the same memory location. And a variable can be used in a Java program only if it has a first been declared. मतलब हमें कहीं भी प्रोग्राम में ये वैल्यू जो यहाँ पे हमने दी है वो यूज करनी है, तो फर्स्ट हमें इसे डिक्लेयर करना पड़ता है, देन एंड देन यहाँ हमें उसे शो करवाना पड़ता है, राइट। Then and then we are able to use that variable. Then after, the conventions used here in the syntax are as follow. Angle brackets denote the item to be specified by user, and curly bracket denote the list of items separated by the commas. ये आप सबको पता है, right? Now यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन मार्क्स, इंटीजर मार्क्स, डबल अमाउंट, इंटरेस्ट, फ्लोट रेट, कैरेक्टर ग्रेड, बुलियन इज पास। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये डेटा टाइप्स आपको दी हुई है, राइट। ये डेटा की मार्क्स है तो वैल्यू क्या आएगी, 5, 10, 20, तो इसके लिए हम इंटीजर यूज करते हैं। अमाउंट एंड इंटरेस्ट क्या होगा, फ्लोटिंग में होगा, राइट। और छोटी अमाउंट तो होगी नहीं, मतलब उसका जो टाइप होगा, स्टोरेज होगा, वो बड़ा होगा, इसीलिए डबल। फ्लोटिंग में क्या होगा, में रेट फ्लोटिंग हो सकता है 100.5, 100.10, इसीलिए रेट के लिए क्या इंटीजर टाइप लिया, फ्लोट। कैरेक्टर ग्रेड दैट मीन्स ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो उसके लिए हमें क्या कैरेक्टर यूज करना पड़ता है, एंड बुलियन की इज पास, इज फेल, तो उसके लिए ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, बुलियन। सो यहाँ पे कुछ रूल्स बताए हैं कि हम वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट, कैसे उसे मेंशन कर सकते हैं, उसके अपने रूल्स होते हैं कि इन इट मस्ट बिगिन विथ एन अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, मतलब उसका स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर। आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर इट मे बी कंटेन डिजिट्स, अल्फाबेट, अंडरस्कोर एंड डॉलर। मतलब हमारा वेरिएबल जो है को या तो इंटीजर
हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट, या तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू पहले नहीं दे सकते, दैट इज दिस इज अवर रॉन्ग वेरिएबल। ये जो दोनों वेरिएबल हमने दिए वो सही है, लेकिन ये न्यूमेरिक वैल्यू हम उसमें नहीं दे सकते, ये उसका रूल है। सम लीगल नेम्स आर बर्थ डेट, रिजल्ट, कॉल कॉस्ट, टॉप 5 स्टूडेंट, डेट, अमाउंट। सम इलीगल नेम्स आर फॉर मी, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि न्यूमेरिक वैल्यू है, पहले परसेंटेज नहीं आ सकता, राइट। बर्थ डेट में यहाँ पे देखो स्पेस दिया है, तो ये स्पेस यहाँ पे कंसीडर नहीं करता, हमें क्या लगाना पड़ता है, अंडरस्कोर लगाना पड़ता है। नो स्पेस आर अवेलेबल एज आई से। Now, it can't be reserved word. Reserved word have special use in Java and can't be used by the programmer for other purpose. Example of some reserved words are class, public, static, if, else and while. यहाँ पे सब पर्टिकुलर वर्ड्स जो है वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मेथड है, क्लास है, पब्लिक है, क्योंकि ये क्या है, ये सारे हम कीवर्ड्स हैं जो जावा के प्रोग्राम में ऑलरेडी यूज करते हैं एज अ रिजर्व वर्ड, राइट। ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के उसे रिजर्व किए हुए, तो उसे हम यूज नहीं कर सकते। नाउ दिस इज अ गाइडलाइंस फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। Choose meaningful variable name. Java allows variable name of any length. मतलब आप उसे रिकॉग्नाइज कर सको, ऐसे नेम दो कि स्टूडेंट का कोई स्ट्रक्चर या प्रोग्राम बनाए तो स्टूडेंट, तो आप इजीली उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, राइट।